Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome back to my YouTube channel Dr. Abid Sargani. Friends, today we are going to discuss about incidences or the disorders occurring during the gestation or the pregnancy period. So let's start our lecture. Outlines. These are the most common problems occurring in a field conditions while pregnancy. तो सबसे पहले जो है कंसेप्टस डेथ है, उसके बाद फीटल एनोमलीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन ऑफ द फीटस एंड फीटल ममिफिकेशन एंड द मेजरेशन, हाइड्रॉप्स यूट्राई, rupture of the prepubic tendon during the pregnancy, pregnant uterus, herniation and the prolapse of the uterus, metabolic diseases occurring in a pregnancy period and prolonged gestation period, and what are the causes of the prolongation of the gestation period and other associations occurring during the pregnancy. So in our today's lecture we will discuss in detail about the conceptus death. First of all, what is conceptus? Conceptus is called the fertilized egg is called conceptus. So conceptus death may be early embryonic death or the late embryonic death. While early embryonic death occurs before the fetal maternal recognition and therefore does not involve the elongation of the corpus luteum life. इसमें मतलब ये है कि अभी हमें रिकग्नाइजेशन नहीं होती कि फीमेल जो है प्रेग्नेंट है या नहीं है, और उसमें क्या होता है कि कार्पस ल्यूटम जल्दी में ही रिग्रेस हो जाता है, तो उसमें फीटस की या फिर एम्ब्रियो की जो है अर्ली डेथ हो जाती है. जबकि लेट एम्ब्रियोनिक डेथ में लॉस ऑफ कंसेप्टस अकर्स आफ्टर द लाइफ ऑफ द कार्पस ल्यूटम हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो कुछ वक्त के बाद जो है सर्विस के बाद या फिर फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन के बाद जो है कुछ टाइम तक जो है कार्पस ल्यूटम बाकी रहता है, उसके बाद उसकी रिग्रेशन हो जाती है. उसके फिर वेरियस काजेज होते हैं जो कि हम आगे चलकर जो है मैं आपको बताऊंगा. तो उसमें जो डेथ होगी एम्ब्रियो की तो हम उसको लेट एम्ब्रियोनिक डेथ कहेंगे. अब बीफ केटल में जो है यूजुअली देखा गया है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो या फिर जो कंसेप्टस डेथ होती है वो 10 to 13 डेज मोस्ट कॉमनली होती है. डेयरी केटल में जो है 15 to 19 डेज में होती है. गोट और शीप में जो है 15 to 18 डेज में होती है. स्वाइन्स मीन्स पिग्स में जो है 9 and 13 डेज के बीच में जो है डेथ होती है कंसेप्टस की. एंड इक्वाइंस में जो है 10 to 14 डेज पोस्ट सर्विस मीन्स पोस्ट कंसेप्शन, इसमें एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है. Different animals show the different wastage percentage of the conceptus cattle. Likely cattle में 45 to 65% चांसेस होते हैं कि वो कंसेप्टस को वेस्ट कर दे, और शीप में 20 to 30% एंड हॉर्सेस में 15 to 24% एंड पिग्स में 30 to 50% आर द चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ द conceptus. So the early embryonic mortality in the cattle has been recommended or suggested that after fertilization there was the 80% chances of the very early embryonic mortality before day 7 of the post service, and after day 8 to 24 there is 10 to 15% chances of the wastage of the embryos. Between days 17 to 42 are and early embryonic mortality is considered, while above than the 42 days is considered as the late embryonic mortality, जिसमें जो है हम फिर एम्ब्रियो को जो है एम्ब्रियो नहीं कहते, उसमें हम फीटस कहते हैं. आफ्टर डे 42 के बाद एम्ब्रियो जो है फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें जो है चांसेस ऑफ डेथ जो है 5% होते हैं. ठीक है, तो मीन्स मोस्ट जो है एम्ब्रियोनिक मोर्टलिटी के चांसेस जो है डे 7 तक होते हैं 80%, जिसको हम जो है वेरी अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टलिटी या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ भी कहते हैं. काजेज ऑफ द कंसेप्टस लॉस आर द डेथ. तो अर्ली एम्ब्रियोनिक हो या फिर लेट एम्ब्रियोनिक डेथ हो, उसमें जो है काजेज कौन से हो सकते हैं? उसमें जेनेटिकली काजेज जो देखे गए हैं वो ये होते हैं: मोनोजेनिक जीन हो गई, पॉलीजेनिक जीन आर द क्रोमोसोमल एनोमलीज. दे मे बी स्ट्रक्चरल आर द न्यूमेरिकल एनोमलीज टू द chromosomes number. Environmental causes of the loss of conceptus or the death of the conceptus includes climatic change like heat stress and nutrition and the stress. Hormones
ovulation rate and uterine conditions are also responsible for the loss of conceptus or death. Failure of the normal feto-maternal recognition factors, infectious agents and teratogens. Other causes of the loss of conceptus includes infectious agents like toxoplasmosis, brucellosis, vibrio,sis, campylobacteriosis, listeriosis, and trichomoniasis. Trichomoniasis and the campylobacteriosis are most commonly in the early embryonic death in cattle. Other causes of the conceptus loss or death includes the endocrine factors or the hormonal factors, inadequate progesterone levels. वो इस वजह से भी हो सकती है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रोडक्शन कम हो रहा हो या फिर जो है उसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही हो, जैसा कि हाई मिल्किंग यील्डिंग काउज जो होती हैं, ठीक है, तो उनमें जो है प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जो है ब्लड लेवल कम हो जाती है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि कंसेप्टस की या फिर प्रेगनेंसी मेंटेन्स ना हो. Early regression of corpus luteum may also be responsible for the inadequate or no secretion of the progesterone at all, which is the main source for the maintenance of pregnancy. And nutritional factors include toxins, if animal has eaten toxins, increased crude protein and rumen degradable protein. अगर प्रोटीन्स की कंसनट्रेशन जो है फीड में ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे कि अमोनिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी जो इन द ब्लड रूमेन एंड यूट्राई ऑफ द काउज, तो वो यूट्रस की जो कंडीशंस हैं या हमें इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर देगा, तो वो भी कंसेप्टस की लॉस का सब बायस बन सकती हैं. मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसीज. मैक्रो मीन्स कैल्शियम हो गया एंड माइक्रो मीन्स आयोडीन एटसेट्रा. एंड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल. एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी इज द मेन काज ऑफ द कंसेप्टस लॉस और द डेथ. अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ या फिर लॉस की जो डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए जो है हम देख सकते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी को, और दूसरी जो है इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए, फॉर एग्जांपल सीरम कंसंट्रेशन ऑफ द बोवाइन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर डिटेक्टिंग द फीटल सर्वाइवल. तो हम ये भी अगर मालूम कर सकते हैं कि फीटस जो ग्रो कर रहा है या फिर फीटस जो है डेड हो चुका है इन द यूट्रस. ये जो है कॉमन जो है टेस्ट्स होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं कि वाइल डिटेक्टिंग दी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सायर फर्टिलिटी टेस्ट स्कोर्स एंड स्ट्रेस डिटेक्शन फर्स्ट डे 0 पर जो है डिटेक्ट की जाती हैं, और उसके बाद डे 7 पर जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन मॉनिटरिंग, mRNA, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड एंड PG and ISG. These are the common procedures which are performed to detect the early embryonic development. अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कंसेप्टस लॉस या फिर डेथ की ट्रीटमेंट जो है GnRH एंड HCG की जो है एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट इंसेमिनेशन, तो इसके ज़रिए जो है हम जो है चांसेस बढ़ा सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे. और सप्लीमेंटिंग द एक्सोजिनस के प्रोजेस्टेरॉन इटसेल्फ और द प्रोस्टोजेस्टेंस, तो वो अलग से भी जो है हमें मार्केटिंग में अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपका जो है फीमेल डेम का जो है फीटस लॉस ना हो या फिर उसमें जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ ना हो, तो वो ऑलरेडी मार्केट में भी अवेलेबल हैं. या फिर GnRH आप इसलिए देते हैं कि वो एनिमल की बॉडी को जो है स्टिमुलेट करेगा कि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करें. और PMSG एडमिनिस्ट्रेशन which is responsible to increase the progesterone secretions and luteal functions without excessive follicular development. तो ये आज का जो है लेक्चर हमारा यहीं तक था कि कंसेप्टस लॉस और कंसेप्टस की डेथ. अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू अवर टुडेज टॉपिक, देन यू मे आस्क इन अवर कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.